Sorry. Yeah. So good evening to everyone present here. We'll be starting with our session right now. And for the people who are coming in here for the very first time, I'll quickly introduce what we are doing here, what the session is about. This is a part of Apna's community exclusive. We've been doing these sessions every day from 7 p.m. To help our Apna users to help in their professional growth, advance in their career, and help them with several different topics like spoken English. We're covering interview preparation, resume tips, technical topics. And today's session is about the role of product manager. We've done one session on product manager role earlier as well. This would be the second session where we deep dive into the role a bit more. We primarily talk about the key metrics that are there, the key skills that you need to develop. And for that, we have Gunjan here with us. Welcome, Gunjan, to the session, and thank you so much for joining us. Gunjan is a senior product manager at Cast24, and we are very happy to have her with us here. And Gunjan, over to you. Why don't you get started with the session? Yeah. Okay. Thank you, Dipanjan, and a very warm welcome to everyone who took out time to basically learn around product management and to learn more about product metrics. So I will just share my screen. We'll get started. Yeah. And just adding one more thing, if anyone has any questions, please feel free to use the chat. We will give you opportunities to ask these questions as well. We'll take breaks in between. In the meantime, you can use the chat to ask questions. We will keep the session primarily in English. We'll also use a little bit of Hindi as well so that everyone else can understand. And yeah, please feel free to use the chat. And whenever we do ask you, you can unmute yourself and ask these questions. Yeah, Gunjan, over to you. Sure. Thanks, Dipanjan. Yeah. So, firstly, I think everyone who all are present here, I would just want to kind of get a quick pulse check from all of you as to how many of you know about product management and are sort of interested in the field. So maybe you can just type in the chat that, interested, or you can just type interested if you are at least interested in the field or at least know about the field, so that I get a, so that I get a sense check around how many of you are sort of already interested in the field, so I can go a little deeper into it. So just type interested if you are kind of interested in product management as a field, know about it, or, want to explore it further. Great. Fine. I can see a lot of people sort of coming in. So yes, now before I get into product management, I mean, just let me also share a little bit of background about myself so that you can understand where I'm coming from and whatever I'm telling you, it makes more sense to you. So I graduated from IIT Delhi back in 2017. And after that, I have about close to now 4.5 years of experience in the space of product management. For those of you who do not know much about product management, you can just imagine it to be a field which basically gives you an opportunity and puts you in a position wherein you have to solve a problem by creating a product that can, that can solve any customer's problem at scale and also solve a business problem in nutshell, right? So for example, if you were to ask that, as a product manager of, let's say, YouTube as a product, we all use YouTube, and there would be a product manager of YouTube who would be thinking about, that there is a problem statement that exists, say, for example, for the customers, wherein they want to sort of either educate themselves through videos or they want to get themselves entertained through videos. That's a customer problem statement, right? And then there is a business who wants to sort of monetize by a lot of ads and do a lot of ad-based monetization or want to earn. So how is it that, by solving the problem statement of the user, of what they want to watch, how much they want to watch, in what format we should show the videos to the customers. So there is a problem. So there's a product manager who's thinking around that by solving both for the user as well as for the business, that what kind of product should we create which can give the best user experience to the customer as well as, solve the business problem. So in a very nutshell, that is what a product manager essentially does. And as soon as you start developing a product, right, in your everyday life, you will be a person who will be sort of interacting this role as, if you understand a little bit about product management and what a product manager does, it basically entails you to work with very different stakeholders
to build a particular product. So for example, if you are a product manager at Zomato, or say for example at Uber, then you will be working with a design team who will basically be creating the designs for you, right? You will be working with a technology or an engineering team that will basically be coding whatever designs you've created, right? There will be then a sales team that will basically take that product, whichever you've built, and, you know, kind of take it to the customer and kind of help to sell the product. There will be a marketing team that will bring the customers to your application. So there are multiple teams that are sort of working in, you know, to make that product a success. So now what product metrics basically does is, you know, I'll talk about whatever is the agenda of today's session, and I'll also then talk about the relevance of product metrics. That why is it that it is very important for any product manager who is working, and you know, it's the key thing that they keep an eye on when they're working in their field, right? So in today's session, we are basically going to cover introduction to metrics. What exactly are product metrics, and why should you even care about product metrics as a product manager? What are the different types of metrics? What are the tools on which you analyze these different types of product metrics and product analytics? And there are certain analysis that as a product manager, you are expected to do. So what are those? We will not go into too much detail. I want to just make sure that you understand what is the relevance of these analysis so that you can appreciate the importance of it. Once you get the role and you are on the job, you will automatically do it yourself. Right. So now, I mean, I just explained that what is a product manager and what does a product manager do, right? Now, you might be, say, for example, let's take the Zomato example itself, and you are a product manager who's working on, you know, the entire food delivery product, wherein you're, you know, you're constantly working to improve the product so that, you know, you can give much better experience to the customers when they are ordering food, when they are adding things to the cart, when they're searching for restaurants, you know, when they're searching for what food dishes to order. So you're constantly working on different problem statements and trying to improve your product or incorporate more features into the product so that, you know, essentially more and more people can order from Zomato. So while you're building all these features, you have to be able to measure the success of it, right? Otherwise, you might have added 10 features. You might have worked the full year and be like that, yes, I've built this into my application. I've added 10 more filters. I've improved the entire, you know, the UX, UI of my application. But how will you be able to sort of communicate to someone whether whatever you have built has actually added any value or not? Whether it has added any incremental value in the business also or not. So for that, metrics is basically the primary key product indicator that you actually measure, which basis which it is assessed that, you know, whether whatever improvisations and whether whatever enhancements you are doing, whether it is adding any value to the product or it is not adding any value to the product. So that is the role of a metric, right? तो मतलब आपने चाहे 10 चीजें बनाई हो पूरे साल में अपने ऐप पे, पर अगर आपका की मेट्रिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो के पीएम हो और अगर आपका मेट्रिक आपको दे दिया गया है कि योर की मेट्रिक इज दैट, यू नो, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड, राइट? कि कितने लोगों ने ऑर्डर बुक किया अपना फूड डिलीवरी के लिए। तो अगर आपने 10 फीचर लॉन्च किए पर उन 10 फीचर को लॉन्च करके वो नंबर हिला ही नहीं, दैट नंबर डिड नॉट इंक्रीज बाय अ मार्जिनल डिफरेंस, इट डिड नॉट गिव एनी इंक्रीमेंटल बेनिफिट, देन आपके वो 10 फीचर बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो दैट नंबर इज वेयर यू विल बी असेस्ड कि हाउ गुड अ प्रोडक्ट मैनेजर यू आर, and basis that number only, you know, all your appraisals etc also will happen, by the way, right? Because that defines the success of your product, that defines the success of whatever solutions you are bringing on the table. Hence, it becomes very important to understand that what are the right metrics that you should measure for your product, और उन metrics को फिर move करने के लिए, उस number को improve करने के लिए फिर आपको क्या करना है, that is the next part of, you know, solving the product and making your product knowledge better. कि अब ठीक है, मेरे को metric समझ में आ गया कि this is my goal. So you can imagine in very simple terms, product metric is a goal that you have taken with your manager कि, you know, this is the goal that we should have for this particular product and we want to improve this goal. तो उस गोल को क्वांटिफाइबल वे में प्रोडक्ट मेट्रिक कहा जाता है, राइट? नाउ why is it that you should measure anything? It is because whenever, जब आप किसी चीज को measure करोगे तभी, जब तक आप उसको measure नहीं करोगे तब तक आप उसे manage नहीं कर सकते. So what gets measured gets managed.
राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आपका वेट फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में से फॉर एग्जाम्पल 70 है, राइट? एंड आई टेल यू कि आपको, मैं, आपका गोल है कि आपको वेट कम करना है, यू हैव टू डिक्रीज योर वेट, राइट? पर अब जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि आपको वेट रिड्यूस करके से फॉर एग्जाम्पल 70 से 50 तक लेके आना है, तब तक आपके दिमाग में सबसे पहले एक तो गोल नहीं है कि मैं कितना क्या करूं, कितना मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे सिर्फ 70 से 65 करना है अपना वेट, तो एक अलग तरीके का सोल्यूशन या एक अलग तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी होगी वेट रिड्यूस करने की। अगर मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, आपको 70 से 50 अपना वेट रिड्यूस करना है, तो आपकी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होगी। पर अगर आप वेट मेजर ही नहीं करो, आप बोलो कि मैं तो मेजर ही नहीं करूंगा, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आप काम कर रहे हो उससे कितना, कौन सी स्ट्रैटेजी से आपको कितना बेनिफिट मिला, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कॉन्स्टेंटली अपना वेट मेजर करते रहोगे। आपने कुछ करा, आप फिर मेजर करोगे कि क्या 70 से मेरा वेट थोड़ा और गिरा, 68 हुआ, 67 हुआ, 66 हुआ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर थिंग यूर डूइंग यू आर मेजरिंग इट, बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट मेजरिंग इट, उससे आपके दिमाग में एक तो आपको ये पता चलता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे आप और बेटर डिसीजन ले पाते हो। एंड सेकेंडली इट गिव्स यू लाइक अ गोल एंड अ मोटिवेशन दैट यू नो दिस इज व्हाट वी आर चेजिंग। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप अंधेरे में जैसे तीर मारे जा रहे हो, राइट? So that is the purpose of a product metric, right? So metrics are numbers or measurements of what describes the product, that what is going on with the product. So metric in simple terms from this slide you have to take, कुछ नहीं है, बस एक नंबर है, एक गोल है जो हमने ले लिया है अपने प्रोडक्ट के लिए, जो हमें मूव करना है, राइट? Now the next thing is that product manager's success, as I said, कि product manager की success ही define होती है how much of the metrics they are able to achieve, right? अगर मैं Zomato का example लूँ, अगर मैं मैनेजर हूँ और मेरे को, मैं अपने प्रोडक्ट मैनेजर को बोलूंगी कि आपका गोल है कि जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड हैं आज के टाइम में, आपको 20% ग्रोथ लेके आनी है। मतलब कि अगर आज आज अगर 80, आज अगर 100 ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो कल को से फॉर एग्जांपल आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको 120 ऑर्डर्स करने हैं, से फॉर एग्जांपल, राइट? तो that is the movement and the growth in the metric that I have given as a goal to my product manager, right? That this is the number that you have to increase as part of your entire product initiatives. अलग अलग प्रोडक्ट मैनेजर्स का डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट दे आर ओनिंग अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना गोल होगा, राइट? तो जैसे दिस इज वन ऑफ द स्लाइड्स, मैं स्लाइड में आप अगर आप ये चीजें देखोगे, फॉर एग्जांपल ये टर्म्स शायद आपने सुनी भी हो, बट ऐसे बहुत सारी मेट्रिक्स होती हैं जो कंपनीज आज के टाइम में मेजर करती हैं, राइट? एंड डिफरेंट प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिफरेंट टीम्स मेजर डिफरेंट मेट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप का प्रोडक्ट ओन करते हैं। कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स फॉर एग्जांपल डेली एक्टिव यूजर मेजर करते हैं, और इन सब मेट्रिक्स की डेफिनेशंस होती हैं, सबके बहुत इजी इजी से फॉर्मूला होते हैं, जो कि जब भी आपको कोई अगर मेट्रिक कभी कंफ्यूजिंग लगे, आपको उसका मतलब समझ में ना आए, तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द फॉर्मूला ऑफ दैट मेट्रिक ऑन गूगल। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल डेली एक्टिव यूजर की अगर मैं बात करूँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट मेट्रिक है। इसका मतलब होता है कि आपकी, मान लो कोई भी एप्लीकेशन है, आप फॉर एग्जांपल यूर फेसबुक, राइट? तो एज फेसबुक आई कैन डिफाइन डेली एक्टिव यूजर्स एज नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग एंड ओपनिंग माई एप्लीकेशन एवरी डे। यहाँ पर मैंने एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है एज ओपनिंग एन एप्लीकेशन। तो DAU का मतलब ये हो गया कि डेली कितने लोग मेरे एप्लीकेशन को आकर खोल रहे हैं। तो इससे मुझे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि एवरी डे हाउ मेनी पीपल आर कमिंग बैक टू माई एप्लीकेशन एवरी डे, हाउ मेनी पीपल आर माई न्यू कस्टमर्स, कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो वापस रिटर्न होके मेरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। तो DAU इज अ क्यूमुलेटिव ऑफ बोथ ऑफ दोज नंबर्स, न्यू प्लस रिटर्निंग यूजर्स, जिन्होंने रोज मेरी एप्लीकेशन आके खोली। दिस इज वन मेट्रिक विच इज वेरी पॉपुलर। अदर मेट्रिक इज फॉर एग्जाम्पल रिटेंशन, फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ बहुत सारी है, मैं सारी मेट्रिक्स तो नहीं आपको समझा रही, बट अगर आप इस स्लाइड को देखोगे तो आप एक एक मेट्रिक भी अगर ध्यान से पढ़ोगे आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। बट द ओवरऑल जिस्ट ऑफ दिस स्लाइड इज कि बहुत सारी मेट्रिक्स होती हैं, सारी मेट्रिक्स हमें कोई याद नहीं करनी है, हमें कोई रटनी नहीं है, हमें बस ये समझना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सी रेलेवेंट मेट्रिक है जो कि हमें मेजर करनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ टू टेक दैट डिसीजन कि हमें कौन सी मेट्रिक देखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए क्या मेट्रिक देखनी है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप की मेट्रिक्स होती हैं।
एक पूरी यूजर और एक प्रोडक्ट की जर्नी में. एंड वंस वी अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोडक्ट जर्नी, then we will automatically understand the kind of metrics that we should measure. So for example, again taking the example of Zomato only, आप लोगों में से काफी लोगों ने जोमेटो या स्विगी इस तरीके की एप्लीकेशंस यूज करी होंगी, राइट? तो अगर मान लो कोई भी नया कस्टमर आज के टाइम में जोमेटो की एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो एक उसका पूरा एक फ्लो है. क्या फ्लो होगा अगर किसी बंदे को खाना ऑर्डर करना है और वो जोमेटो से ऑर्डर करना है, क्या फ्लो होगा उसका? सबसे पहले वो जोमेटो की एप्लीकेशन अगर उसके पास नहीं है, तो वो सबसे पहले जोमेटो की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा. ठीक है, अगर एंड्रॉइड फोन होगा, एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर पे जाएगा, प्ले स्टोर पे जाकर वहां से जोमेटो की एप्लीकेशन टाइप करेगा, जोमेटो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, राइट? इंस्टॉल करने के बाद वो उसको पे अपनी एप्लीकेशन पे साइन अप करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा, अपना फोन नंबर देगा, नेम देगा, अपना लोकेशन वगैरह देगा. लोकेशन वगैरह देने के बाद बस एक ही बार ये सब देना होता है, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन के अंदर घुस जाते हो, राइट? तो इस प्रोसेस में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक नए यूजर ने अपनी इंफॉर्मेशन दे के साइन अप कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने एज जोमैटो, तो हम ये बोलेंगे जोमैटो ने उस यूजर को अक्वायर कर लिया, राइट? अभी उस बंदे के पास मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है. तो समथिंग लाइक एक्विजिशन विच इज बेसिकली लाइक द नंबर ऑफ न्यू साइन अप्स. मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं रोज ये भी देखूंगी कि भाई मेरे प्रोडक्ट पे रोज कितने लोग आ रहे हैं, कितने नए कस्टमर आ रहे हैं. तो उस अगर मुझे ये जानना है कि मेरे प्रोडक्ट पे रोज कितने नए कस्टमर आ रहे हैं, तो मैं क्या नंबर देखूंगी? उसके लिए मैं ये नंबर देखूंगी कि नंबर ऑफ न्यू साइनअप्स, कि जितने भी लोग नए लोग मेरे एप्लीकेशन पे आके न्यू साइन अप कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली एन एक्विजिशन मेट्रिक, राइट? क्योंकि कल को अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि गुंजन तुम्हारे तुम जोमेटो में ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओन कर रही हो और तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स से फॉर एग्जांपल गिर गए हैं, अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम्हारे गिर गए हैं, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में कुछ खराबी हो कि वहां पर लोग ड्रॉप हो रहे हों, या ऐसा हो सकता है कि मेरे मेरे ऐप पे ही ज्यादा लोग नहीं आए, जिसके कारण जब ऐप में ही पहले मान लो 500 लोग आते थे, आज मेरे ऐप में सिर्फ 100 लोग आए. तो अब अगर सिर्फ 100 ही लोग आए तो ऑटोमेटिकली मेरा कन्वर्जन कम होगा, जब कम लोग आएंगे तो कम लोग ऑर्डर करेंगे खाना, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए कि भाई मेरा जो ये नंबर गिरा, नंबर ऑफ ऑर्डर जो मेरा प्राइमरी मेट्रिक था, अगर वो गिरा, वो किस लिए गिरा? वो इसलिए गिरा क्योंकि मेरे नंबर ऑफ यूजर्स कम आए, या फिर मेरा प्रोडक्ट में जर्नी कहीं ब्रोकन थी. उसके लिए ऑल्सो वी वांट टू मेजर ऑल दीज मेट्रिक्स, राइट? वी हैव टू कीप एन आई ऑन दीज मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड दैट वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम लाइन, राइट? तो एक्विजिशन में जैसे लाइक द नंबर ऑफ न्यू साइनअप्स कितने हुए हैं, न्यू इंस्टॉल्स कितने हुए हैं हर रोज हमारे, राइट? फिर उस तो अब जैसे ये नए नए साइनअप्स भी आए हैं, इसमें भी हम और अंदर घुस के ये समझ सकते हैं कि ये जो लोग नए साइनअप होके भी आए हैं, ये लोग क्या मेरा फेसबुक का ऐड देख के ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर ये क्या मेरा गूगल पे इन लोगों ने क्लिक किया और वहां से इंस्टॉल किया? कहाँ से ये जनता आ रही है, कहाँ से ज्यादा? या हो सकता है उन लोगों ने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, या फिर उन्होंने गूगल पे सर्च किया और वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली. तो आप और भी अंदर इसमें ग्रैन्युलर जा सकते हो निकालने के लिए, अगर आपको यही जानना है कि मेरे आज के टाइम में जितने भी यूजर्स जोमेटो पे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दोज आर पार्ट ऑफ योर एक्विजिशन मेट्रिक्स. एक्विजिशन मतलब हमने यूजर को अक्वायर किया, और उस अक्वायर करने में बेसिकली क्या डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो आप मेजर करोगे, that are your acquisition metrics. Gunjan, can we take like maybe a couple of questions if there's anything so far? Yeah, I think there's Correct. one question that came on chat, which is NPS also a metric? As mostly we've seen NPS score taken into account for most PMs. Correct. That's a very good question. And NPS is also a very important metric, and I will be talking about it in the subsequent slides also. So NPS basically denotes that how happy or satisfied your customer is with the product or the service that you're providing. Right. So there is a way of how you calculate NPS, but absolutely it's a very important metric that measures the customer satisfaction with your product or service. Okay. Apart from that, is there any other questions that anyone wants to ask? किसी को कुछ सवाल अभी तक है, कुछ डाउट है जो पूछना है, आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एंड उसके बाद हम सेशन में कंटिन्यू करेंगे. अगर अभी तक किसी को कुछ सवाल है, एनी डाउट्स दैट समवन वांट्स टू आस्क, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. Okay. You can also ask your questions on chat.
we will take those questions shortly. But yeah, if you want, you can unmute yourself now as well. But otherwise, we can go ahead. Sure. Yeah, I think there's no questions at the moment. We can proceed. Yeah. ठीक है, तो एक्विजिशन में एज ए सेट कि हमने एक बार यूजर को अक्वायर कर लिया, तो अब फॉर एग्जांपल जोमेटो पे मेरे यूजर्स आ गए, नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ जोमेटो, उन लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, उन्होंने साइन अप कर लिया है। अब आता है बात कि उनको अब ऑर्डर करना है, राइट? तो अब ऑर्डर करने के लिए देयर इज अ जर्नी ऑन द प्रोडक्ट फॉर दैट। एक बार आप ऐप पे आ गए हो, ऐप पे आके अब आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे टू बेसिकली ऑर्डर फूड, राइट? फॉर दैट यू विल आइदर बी सर्चिंग फॉर सम रेस्टोरेंट जहां से आपको खाना मंगाना है। आप सोच सकते हो कि यार मेरे को डोमिनोज से ही से फॉर एग्जांपल पिज्जा मंगाना है, तो यू विल टाइप, you will search for a particular restaurant or for a particular dish. Yeah, I want to say, for example, eat biryani. So you will type it in your search box, or you will search through the the recommendations that are thrown by Zomato at you. तो आप उसमें से कुछ search करोगे. After that, once you've sort of decided the restaurant, you will sort of decide onto the dish that you want to order. You will add it to your cart. Once it has been added to your cart, you will then go to the payment page, make the payment, and then that food gets basically delivered to your place. So there is a journey to basically ordering that entire food. Now, so once you have acquired the user, the next part is basically activating that user. Activation means that basically a first time user or a new user who has just come to your application, when they experience the true value that your product has to offer, जब वो पहली बार उसको उस वैल्यू को एक्सपीरियंस करते हैं, तो बेसिकली उस यूजर को कहा जाता है कि अब वो एक्टिवेटेड यूजर हो गया। मतलब कि एक जोमेटो का कस्टमर आया, एक नया यूजर आया, उसने ऑर्डर किया फूड, और से फॉर एग्जांपल उसने 2-3 बार फूड ऑर्डर किया। अब उस यूजर ने जोमेटो क्या वैल्यू देता है फूड ऑर्डर करने में, कि आपको घर बैठे बैठे किसी भी रेस्टोरेंट का खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, दैट इज द वैल्यू दैट जोमेटो एज अ प्रोडक्ट इज गिविंग टू यू, राइट? नाउ व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस सर्विस, व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये वैल्यूएबल चीज है, और आप फिर इस प्रोडक्ट पे हमेशा के लिए रिटेन्ड रहोगे। तो जब आपने 1 या 2 बार फूड ऑर्डर कर लिया जोमेटो से, then you are called as an activated user, right? Because you have experienced the true and the core value that product has to offer. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उबर के लिए क्या होगा कि उबर एज अ जो एक राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उबर, ओला, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ओला या उबर की राइड इंस्टॉल की, एप्लीकेशन इंस्टॉल की, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद मान लो आपने पहली राइड बुक की, वो राइड आपके घर पे ड्राइवर आ गया, वो ड्राइवर आपको आपकी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर लेके चला गया, एंड आफ्टर दैट आपको आपकी डेजिग्नेटेड लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ कर दिया। तो आपने उस सर्विस को अवेल किया, आपने उसकी वैल्यू को रियलाइज किया, और अगर वो आपके लिए ट्रूली वैल्यूएबल सर्विस थी, देन यू अंडरस्टैंड you experience that what we call as the aha moment, right? Which is that moment or that feeling that it solved some problem for you. This product solved some problem for you. Zomato solved your problem कि अगर आपको वरना रेस्टोरेंट जाना पड़ता, खुद से खाना ऑर्डर करना पड़ता, वहां से या तो आप अपने घर पे लेके आते, तब आप खा पाते, अभी आपको घर बैठे बैठे ही कोई चीज मिल गई, तो दैट्स एन आहा मोमेंट फॉर यू, इट सॉल्व्ड समथिंग फॉर यू, राइट? तो यू आर नाउ एक्टिवेटेड, यू आर नाउ एन एक्टिवेटेड यूजर। तो बेसिकली अगर मेरे को ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे जो यूजर्स मेरी एप्लीकेशन पर आ गए हैं, अब उनमें से कितने यूजर्स एक्टिवेटेड हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सपीरियंस किया है, तो उसके लिए द काइंड ऑफ मेट्रिक्स दैट आई विल मेजर, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ उबर इट विल बी द नंबर ऑफ राइड्स दैट आर बुक्ड बाय माय फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉल करने के बाद मेरी राइड को बुक करते हैं, से फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट 7 days, राइट? जोमेटो के लिए भी ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ कि जितने लोगों ने जब से लोगों ने जोमेटो एप्लीकेशन इंस्टॉल की, फर्स्ट 7 days में कितने लोगों ने खाना ऑर्डर किया, राइट? इट विल शो मी कि कितनी जल्दी लोग उस एप्लीकेशन पे उस ट्रू वैल्यू को रियलाइज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं टाइम टू एक्टिवेट, कि आपने कितनी जल्दी आप उस प्रोडक्ट जो ऑफर करता है, या प्रोडक्ट जो वैल्यू प्रोवाइड करता है उस कस्टमर को, कितनी जल्दी आप उस वैल्यू को रियलाइज कर देते हो, राइट? सो दोज आर व्हाट आर कॉल्ड एज द एक्टिवेशन मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे एंगेजमेंट मैट्रिक्स की। तो वंस आप एप्लीकेशन पे आए, तो आप अक्वायर हो गए,
अक्वायर होने के बाद आपने 1 या 2 बार उस प्रोडक्ट को यूज किया, या उसका मेन जो भी वो उसकी ऑफरिंग है आपने वो काम करा, देन यू आर कॉल्ड एज कि अब आप एक्टिवेट हो गए हो, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और आप उसकी वैल्यू समझ रहे हो जो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब आपको जब ये समझ में आ गया कि हाँ यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो अब आप उस एप्लीकेशन में और फर्दर एंगेज्ड हो जाते हो। एंगेज्ड मतलब कि अब आप उसके रिपीट यूजर बन जाते हो। अब हर बारी जब आपको खाना ऑर्डर करना है तो आपके दिमाग में जोमेटो ही आता है। आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं खुद जाके फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट से ले आता हूँ खाना, बिकॉज नाउ यू फील कि यार कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को जोमेटो ला के घर पे ही दे देगा जहाँ मुझे खाना ऑर्डर करना है। यू एक्सपीरियंस द वैल्यू दैट इट प्रोवाइड्स, so automatically you are now an engaged user and you keep doing that same action again and again. You will keep ordering from Zomato again and again. You have now become a repeat user of Zomato. तो अब अगर आप रिपीट यूजर बन गए हो तो उसके लिए मैं क्या मेट्रिक्स मेजर करूंगी? हाउ वुड आई नो दैट हाउ मेनी मोर पीपल आर सॉर्ट ऑफ ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो, राइट? कितने ऐसे यूजर्स हैं जो बार बार ऑर्डर करते हैं? तो उसके लिए मुझे कुछ तो मेजर करना पड़ेगा ना, ये पता करने के लिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार जो आए थे उन्होंने ऑर्डर किया, और कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर हैं वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ मेट्रिक समथिंग लाइक मंथली एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर, वीकली एक्टिव यूजर्स, ये जो माओ डाओ और ये आप देख रहे हो इसका यही फुल फॉर्म है। एम मतलब मंथली, ए मतलब एक्टिव, एंड यू मतलब यूजर्स। So this is monthly, this is daily, D for daily, and this is W is weekly. So you can measure some of these metrics. इससे आपको ये पता चलता है कि मेरी एप्लीकेशन पर मंथली कितने एक्टिव यूजर हैं, मतलब कितने ऐसे यूजर्स हैं जो मंथली ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे, राइट? डेली एक्टिव यूजर का मतलब हो गया कि डेली ऐसे कितने यूजर्स हैं जो कि ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे, एंड वीकली मीन्स हाउ मेनी यूजर्स आर देयर हु आर वीकली ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो, राइट? सो दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन कि हमारे एप्लीकेशन को रिपीट यूज करने वाली जनता कितनी है, राइट? सो दीज आर द मेट्रिक्स दैट यू आर गोइंग टू बी मेजरिंग फॉर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मच एंगेज्ड पीपल आर विद योर एप्लीकेशन, राइट? फिर उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि हमारी एप्लीकेशन पर मल्टीपल टाइम लोग हैं जो अब आ रहे हैं जोमेटो पे, उन्होंने वो पहले आए, इंस्टॉल किया, फिर 1 या 2 बार यूज किया एप्लीकेशन, फिर 1 या 2 बार यूज करने के बाद एप्लीकेशन उन लोगों ने फिर बार बार यूज करना स्टार्ट किया, विच मेंट कि नाउ दे आर एंगेज्ड यूजर्स। अब जो इंसान बार बार ऑर्डर करे जा रहा है वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल तो करेगा नहीं, राइट? वो उसी एप्लीकेशन पे रहेगा, because that person has realized that that application solves some problems for you. Now once you've realized that, then you are basically a retained user for that company or for that product, right? You will keep coming back to that application after a fixed interval of time, right? मतलब आपको से फॉर एग्जांपल आप रोज तो खाना जैसे ऑर्डर नहीं करते हो, आप हफ्ते में, लेकिन आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑर्डर कर लेते हो, तो आप एक वीकली रिटेन्ड यूजर हो, या आप हर वीक आते हो, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समथिंग लाइक, अगर मैं, आप लोगों ने मेक माई ट्रिप का नाम सुना हो, मेक माई ट्रिप इज एन एप्लीकेशन जिसपे आप अपने हॉलीडे पैकेजेस या अपनी हॉलीडे प्लान कर सकते हो। अब हर कोई, अब आप हर हफ्ते तो घूमने नहीं जाते हो, आप हर महीने भी घूमने नहीं जाते हो, आप साल में से फॉर एग्जांपल 1 बार चले जाओगे, साल में 2 बार चले जाओगे। तो वहां पर उधर मेक माई ट्रिप का जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, जो कि ये पूरा का पूरा हॉलीडे बुकिंग और ये सब चीजें देख रहा होगा, वो देखेगा कि भाई क्या मेरे हर 6 महीने में मेरा यूजर वापस आ रहा है, राइट? क्या वो हर साल मेरे पास यूजर वापस आ रहा है? तो इस केस में आप से फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ या फिर एक ईयरली रिटेंशन देखते हो, राइट? वहां पर आप डेली रिटेंशन देख के कुछ नहीं करोगे, आप कोई रोज थोड़ी ना मेक माई ट्रिप की ऐप खोलोगे, है ना? पर आप रोज फेसबुक खोलोगे, क्योंकि फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है, फेसबुक या इंस्टाग्राम ये ऐसी एप्लीकेशंस है जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज एवरी डे है। आप रोज खोल के आप उसमें देखते हो कि क्या चल रहा है, पर आप खाने के लिए रोज नहीं देखते हो। तो हर एप्लीकेशन की अपनी एक यूज करने का एक फ्रीक्वेंसी होता है। कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो रोज खुलती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो वीकली खुलती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो शायद महीने में या 6 महीने में या साल में 1 बार खुलती हैं। तो उसी के हिसाब से आपको, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको उसकी मेट्रिक्स भी देखनी चाहिए, ठीक है?
और जैसे मैंने रिटेंशन के केस में कहा, तो अगर आपको पता चल गया जोमेटो के केस में, जैसे आपका कोई रिपीट यूजर है, वो बार बार आपकी एप्लीकेशन पर आ रहा है, तो उस केस में आप उसका रिटेंशन फिर मेजर करोगे कि क्या ये, इसका मंथली रिटेंशन क्या है। मंथली रिटेंशन का मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आज मान लो आज जनवरी है, जनवरी में मान लो मेरे पास 100 यूजर आए, तो मैं ये बोलूंगी कि अच्छा जनवरी में 100 यूजर आए, अब फेब्रवरी में इन 100 में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे पास फेब्रवरी तक भी रुकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोग आए, उन 100 लोगों में से 70 पीपल जस्ट लीव द एप्लीकेशन, उन्हें लगे कि यार ये तो इसमें मैं को तो खाना बाहर से ऑर्डर करके अच्छा नहीं लगा, पहली बार ऑर्डर किया अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। तो तो फेब्रवरी तक सिर्फ उन 100 में से सिर्फ से फॉर एग्जांपल 70 लोग ही ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन पे रुके, बाकी 30 ने छोड़ दिया। फिर वापस वो जो 70 थे, उन 70 में से भी फिर मार्च आया, मार्च में से फॉर एग्जांपल से फिर 50 रुके, बाकी और वो 20 निकल गए, उन्हें भी और अच्छी नहीं लगी एप्लीकेशन। ठीक है। फिर मार्च के बाद फिर आया आपका अप्रैल, उस 50 में से फिर सिर्फ 40 जनता ही रुकी, राइट। पर वो 40 जनता जो रुकी, फिर वो मार्च अप्रैल भी रुकी, मई भी रुकी, जून भी रुकी, जुलाई भी रुकी, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी। तो अब आप इसमें बोलोगे कि मेरा जो मंथली रिटेंशन है वो यहाँ पर 40% के आसपास है। मेरा मेरा से फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ रिटेंशन या 4 मंथ रिटेंशन जो है वो अराउंड 40% है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40% जनता ही है जो कि रुकती है, क्या कहते हैं, सिर्फ 40% जनता ही मेरे पास 4 महीने बाद रुकती है, उसके बाद उसके उसके अलावा सारी की सारी 60% जनता मेरी एप्लीकेशन छोड़ देती है। ये मतलब होता है रिटेंशन का। तो इससे आपको ये पता चलता है, रिटेंशन देखने से या ये मेट्रिक्स देखने से आपको ये पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन पे इतने आप सारे लोगों को एप्लीकेशन पर लेके आते हो, इंस्टॉल करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो मार्केटिंग का टू गेट पीपल ऑन टू योर एप्लीकेशन, आप कितने लोगों को एप्लीकेशन पे रोक पाते हो और कितने लोग आपके एप्लीकेशन छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो आइडियली आपके यूजर्स को नहीं जाना चाहिए एप्लीकेशन से। So it also kind of decides or sort of shows that what is the value that your product is giving to the customer when you measure the retention for your product, right? फिर इसके बाद हम जो कुछ और मेट्रिक्स मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं रेवेन्यू या मोनेटाइजेशन की, जिसमें हम मेजर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना पैसा कमा रहा है, राइट। तो इसमें आप करते हो कि कितना, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर क्या कहते हैं, मान लो नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस बेचता है। तो अगर हमें ये मेजर कर सकते हैं कि कितने सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बॉट बाय यूजर्स पर डे, कि कितने सब्सक्रिप्शन सेल हुए। फिर उसके बाद जैसे कुछ और जो मेट्रिक्स सकते हैं, इसमें लाइफ टाइम वैल्यू होती है कि मान लो अगर कोई एक कस्टमर है वो आपके साथ, मान लो आपने जोमेटो पे आया है, आपने जोमेटो पे से फॉर एग्जांपल आप 6 महीने तक रुके, 6 महीने तक से फॉर एग्जांपल आपने 10 ऑर्डर किए, 10 ऑर्डर किए और हर ऑर्डर से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का था, तो आपने 1000 रुपए का रेवेन्यू दिया जोमेटो को, 10 ऑर्डर किए, हर ऑर्डर 100 रुपए का, 6 महीने में। तो 6 महीने में 1000 रुपए आपकी लाइफ टाइम वैल्यू हो गई। मतलब जो लाइफ टाइम आपने उस प्रोडक्ट पे बिताया, उस लाइफ टाइम में आपने कितना रेवेन्यू कमा के दिया उस कंपनी को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है। फिर आते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है और ये आप बहुत जगह सुनोगे अगर आप प्रोडक्ट में जाते हो। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी जो बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ये बहुत पैसा खर्च करती हैं नए कस्टमर्स को लेके आने के लिए, राइट। क्योंकि मतलब वही है, कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो लोग यूट्यूब पे ऐड डालते हैं, फेसबुक पे ऐड डालते हैं, गूगल पे ऐड डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं टू अक्वायर कस्टमर्स। तो ये सब उस कस्टमर को अक्वायर करने में, उसको इंस्टॉल कराने में आपकी एप्लीकेशन जो पैसा लगा, उस पैसे को बोला जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बहुत सिंपल सा कि आपको उस कस्टमर को अपने एप्लीकेशन पर लाने तक के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा, उस कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर, राइट।
इसके अलावा कुछ और भी मेट्रिक्स होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो कि हर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, हर यूजर कितना मुझे रेवेन्यू दे के जा रहा है, मंथली कितना रेवेन्यू दे रहा है, वो एवरेज कितना रेवेन्यू दे रहा है। तो इस तरीके के कुछ अलग अलग मोनेटाइजेशन के मेट्रिक्स हैं जो देखे जाते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट सेट ऑफ मेट्रिक्स विच इज बेसिकली, जो किसी ने पूछा भी था अभी, एनपीएस। आपने ये देख लिया कि कितने यूजर्स मेरे एप्लीकेशन पे आए, जो हमने सबसे पहले बोला वो था एक्विजिशन मेट्रिक। एक बार जब कोई आपकी एप्लीकेशन पर आ गया, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करता है। वो जब आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक्टिवेट हो गया। तो उसके लिए हमने कुछ एक्टिवेशन मेट्रिक्स डिफाइन किए। फिर हमने बोला कि ठीक है, उसने आपकी एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट किया, अब वो रिपीटेड यूज करेगा, जिससे कि वो आपकी एप्लीकेशन को छोड़ के ना जाए। जिस पे हमने डिफाइन किया कुछ एंगेजमेंट और रिटेंशन के मेट्रिक्स, कि फॉर एग्जांपल वो वीकली कितना रिटेन हो रहा है, वो हर रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेली एक्टिव यूजर है कि नहीं है, मंथली एक्टिव यूजर है कि नहीं। तो हमने कुछ ये मेट्रिक्स डिफाइन किए। फिर हमने बोला कि अच्छा, वो फिर आ रहा है, फिर वो आपके साथ कुछ खरीदेगा भी एप्लीकेशन पे। अगर वो कुछ खरीदता है तो हमने फिर मोनेटाइजेशन के मेट्रिक्स डिफाइन किए कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना देके जा रहा है, ओवरऑल रेवेन्यू कितना आ रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उस कस्टमर को अक्वायर करने में कितना टोटल पैसा लगा, जो हमने कैक बोला। तो हमने वो सब मेजर किया। फिर उसके बाद एंड में हम ये देखते हैं कि उस यूजर ने जब इस पूरी जर्नी को किया और आपके साथ पूरा ट्रांजैक्शन किया, उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके प्रोडक्ट को यूज करने में, which is basically the satisfaction that the customer has with your overall application. तो इसमें हमारे पास आते हैं जैसे नेट प्रमोटर स्कोर। तो नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा पूछा जाता है, मतलब दिस इज मोर लाइक अ सर्वे दैट इज सॉर्ट ऑफ डन विद द कस्टमर्स एंड आस्क टू देम कि हाउ लाइकली आर यू टू रेफर दिस एप्लीकेशन टू समवन एल्स। मतलब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप इस एप्लीकेशन को किसी और को रेफर करोगे, क्या आप इस सर्विस को किसी और को रेफर करोगे। सिर्फ अगर वो लोग बोलते हैं हाँ हम रेफर करेंगे, तो दिस इज काउंटेड एज अ वेरी हाई स्कोर। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर अगर कोई बोले कि नहीं ये बिल्कुल ही बेकार एप्लीकेशन है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो इसको किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो इसका मतलब वो हाईली डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उस एप्लीकेशन के साथ। तो आप वो एक तो आप बेसिकली एक सर्वे करते हो और फिर आप वो एक नेट स्कोर निकालते हो कि कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी लग रही है और हम इसको और लोगों को भी बताएंगे, हम हाईली सेटिस्फाइड हैं इससे। और कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बेकार एप्लीकेशन है। तो आप इन सारी चीजों को मेजर करके एक क्यूमुलेटिव फाइनल स्कोर निकालते हो, जिसे एनपीएस कहा जाता है, which is basically an indicator of how satisfied your customers are with your product, right? That is the net promoter score. एंड ऐसे ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर होता है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत एप्लीकेशंस आपको बोलती हैं रेट दिस एप्लीकेशन, कि 5 में से हमें रेटिंग दो, 1, 2 या 3 या 4। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को रेटिंग दे सकते हो, ठीक है। तो दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। फिर ऐप स्टोर रेटिंग होती है। ऐप स्टोर पे आपने बहुत सारी एप्स का देखा होगा कि किसी की रेटिंग 5 होती है, किसी की 4 होती है। तो उससे पता चल जाता है कि कितने लोग इस ऐप को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो मतलब कितने लोग इस ऐप से सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रेटिंग। आई कैन टेक लाइक अ पॉज हियर बिकॉज दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स। ये जितना भी अभी तक मैंने बताया है, दिस इज मोर लाइक अ समरी of every type of metric and the different types of metrics that we measure। जैसे acquisition में हम क्या metrics measure करेंगे, activation में हम क्या measure करेंगे, engagement में हम क्या measure करेंगे, तो ये category है। और उसमें हम क्या number measure करेंगे वो यहाँ पर लिख। So this is like a quick summary of it. So I can just take a pause here and if there are any questions we can take now, Dipanjan. Yeah, yeah. So far we haven't received anything on chat. अगर किसी को अभी कुछ सवाल पूछना है, anyone has any questions, please feel free to come forward. Like you can clarify your doubts regarding the product manager role. What are the different skills you need to take care of? What are the different metrics? So we've discussed a lot of things. So if anyone has any questions, please unmute yourself and you can ask the question. कोई सवाल है किसी के, कुछ कोई पूछना चाहेगा? Yeah, so there's one question regarding North Star metric, how we decided in any specific way. Got it. Yeah.
Again, it's a very good question. How do you decide the North Star metric? So, I mean, for those of you who do not know what is the North Star metric, तो बेसिकली नॉर्थ स्टार मेट्रिक होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उस पूरे प्रोडक्ट का, अभी तो मैंने आपको देखो एक बहुत लंबी लिस्ट दे दी, अब आप इसमें से मुझसे पूछ सकते हो कि ये सारी जो इतनी सारी मेट्रिक्स हैं हमें क्या ये सारी देखनी है, या इसमें से भी कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि हमारे लिए सबसे की इंपॉर्टेंट मेट्रिक है और हमें सबसे पहले उसी पे करना है, क्योंकि अगर आप 10 चीजें देखोगे तो आपको क्या, कोई नंबर ऊपर जाएगा कोई नंबर नीचे जाएगा, हाउ विल यू सॉर्ट ऑफ मेक एनी कंक्लूसिव डिसीजन एज टू व्हाट इज हैपनिंग, राइट? तो उसके लिए देखा जाता है नॉर्थ स्टार मेट्रिक। नॉर्थ स्टार मेट्रिक होता है कि आपके पूरे प्रोडक्ट का विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो आपको जो आपको फॉर एग्जाम्पल मूव करना है। और जो नॉर्थ स्टार मेट्रिक होता है कि आपको कौन सा मेट्रिक लेना चाहिए एज योर नॉर्थ स्टार, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टाइम कंपनी का गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकती हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जोमेटो हूँ, राइट? और जोमेटो का अभी गोल है कि भाई मुझे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, आई जस्ट वांट टू improve माई रेवेन्यू, दैट इज द गोल दैट द कंपनी हैज टेकन। Now, if that is the goal, then I can say that the most important metric out of all these metrics for me is that I want to improve the overall number of orders that are booked. Because जितने ज्यादा ऑर्डर बुक होगा उतना ही ज्यादा मेरे को रेवेन्यू आएगा। तो हेंस आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट रिटेंशन। ठीक है, हायर रिटेंशन होगा तो हायर रेवेन्यू आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर मुझे मतलब है कि मेरा रेवेन्यू सबसे ज्यादा आना चाहिए। अब उस हायर रेवेन्यू के लिए आपको रिटेंशन बढ़ाना है, आप वो कर लो। आपको आपको और नए यूजर्स लेके आने हैं, आप वो कर लो। आपको जो करना है वो करो। मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक, जो मेरा एक्चुअल फाइनल गोल है जो मुझे अचीव करना है, वो है रेवेन्यू। कि मेरे को अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आज 100 हैं तो 100 से लेकर 120 पे लेके जाने हैं। तो दैट बिकम्स माई मोस्ट कोर मेट्रिक दैट यू वांट टू ड्राइव, एंड इट कुड बी एनीथिंग। अभी मैंने रेवेन्यू बोल दिया तो वो रेवेन्यू के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड हो गया। अब हो सकता है अगर आप कोई नई एप्लीकेशन हो जो अभी नया नया लॉन्च कर रहे हो, आप एक नए स्टार्टअप हो, तो अगर आप एक नए स्टार्टअप हो तब हो सकता है आपको शुरू में एकदम से रेवेन्यू ना मिले। आपका उस टाइम गोल होता है कि आप बहुत सारे नए कस्टमर्स को लेके आओ एप्लीकेशन पर, मोर एंड मोर पीपल शुड कम टू योर ऐप। तो हो सकता है आप अपना गोल बोलो कि मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक इस समय है टोटल नंबर ऑफ साइन अप्स, बिकॉज आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू सॉर्ट ऑफ जस्ट इंस्टॉल माय एप्लीकेशन, राइट? That because adoption and acquisition is the goal that I'm taking. So if acquisition is your goal, then probably you might take that as your North Star. So North Star really depends on what is the goal that you have taken, और उस गोल के हिसाब से आप अपना मेट्रिक डिफाइन कर सकते हो। There's one more question. This is regarding, is there any good courses that you can recommend for product management, something that can be done online? Right. So there are a couple of courses here. Essentially, like for example, if there are courses on Udemy, you can check Udemy. Udemy पे काफी मतलब affordable courses हैं. You can check there. Then there are likes of AirTribe. There is NextLeap is also there. Probably I can put it down in the chat so that people can, So there is NextLeap. There is AirTribe. So I think I'm putting it down, everyone. Just yes, NextLeap, AirTribe is there, then there's Upraised, Udemy. So all of these have then there's, I think, Hello PM has also launched it. So a lot of players who've actually launched these courses around, so basically these courses help you to sort of upskill also in the field of product management. And at the same time, you can also, they help in sort of job support also. So you can just refer to them to understand what are the different types of, how to study more about product management. They've also asked for an example of CLV and churn rate, if you can explain that. Got it. Yeah. So this is customers. So I'll go back to this slide. So when we discussed customer lifetime value, let me repeat this. So CLV और customer lifetime value का मतलब ये होता है कि आप जितने भी टाइम उस एप्लीकेशन पे रुके, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी रिपीट द जोमेटो एग्जांपल, कि मान लो आप एक कस्टमर हो, आप जोमेटो पे आए, और जोमेटो पर आने के बाद आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने तक उस एप्लीकेशन को यूज किया, और फिर 6 महीने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को यूज करना छोड़ दिया, और उस 6 महीने में आपने 10 बार जोमेटो से ऑर्डर किया, ठीक है?
10 बार ऑर्डर किया और आपने हर ऑर्डर से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का मंगाया। पहला ऑर्डर किया 100 रुपए का कुछ डिश ऑर्डर कर दिया, दूसरा ऑर्डर मंगाया अगेन 100 रुपए का कुछ ऑर्डर कर दिया। तो ऐसे करके आपने 10 बार ऑर्डर किया, राइट? तो आपने टोटल कितने का मंगाया सामान उन 6 महीने में? 1000 रुपीज, 10 into 100, तो आपने 1000 रुपीज का टोटल सामान मंगाया। तो दैट इज द टोटल रेवेन्यू दैट यू कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ कस्टमर in your lifetime with Zomato. That is what is called as the customer lifetime value. It is the revenue that is made on average on a certain period of time by a customer. तो एक एवरेज लाइफ टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गया, साल हो गया। उस साल में कस्टमर ने कितना रेवेन्यू या कितना सामान खरीदा या कितने का सामान खरीदा ओवरऑल, तो इट इन अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम, सो दैट डिफाइंस कि भाई कितना कितना कंट्रीब्यूट किया उसने। दैट इज व्हाट इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, राइट? मैं इसका एक रेलेवेंस और बताती हूँ, मतलब मैंने ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए मैंने नहीं बताया। आप क्यों देखोगे इस मेट्रिक को? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इवन सीइंग दिस मेट्रिक? मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं जोमेटो हूँ, आप एक कस्टमर हो। आपको अक्वायर करने के लिए मैंने आपको फेसबुक का ऐड दिखाया, आपको गूगल का ऐड दिखाया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस चलाई। उन सबको चलाने के बाद मैंने आपको अक्वायर किया, आप कन्विंस हो गए और फिर आपने मेरी जोमेटो की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। इन सब एड वैड को चला के खर्चा जो हुआ आपको अक्वायर करने में, से फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपए हुआ। कुछ पैसा मैंने गूगल को भी दिया होगा, कुछ मैंने फेसबुक के ऐड चलाने में भी दिया, यूट्यूब पे भी दिया, तो मेरे को टोटल आपको अपनी एप्लीकेशन पे लाने के लिए मुझे 50 रुपए लगे। तो दैट इज माई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। पर आपने जो मेरे को लाइफ टाइम वैल्यू किया वो दिया मुझे आपने, आप 6 महीने रहे मेरी एप्लीकेशन पे और आपने मुझे 1000 रुपए का रेवेन्यू दिया। तो आपने, मैं आपको लाई 50 रुपए में थी, पर आपने मेरे को 1000 रुपए का रेवेन्यू दिया। तो मैं जितने में आपसे लाई थी उससे तो थोड़ा ज्यादा ही दिया ना आपने मुझे। तो इस चीज को कंपेयर करने के लिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को देखा जाता है कि क्या उस कस्टमर को ला के ओवरऑल मुझे कुछ फायदा वो कस्टमर दे के गया या नहीं दे के गया। नाउ टेक अनदर केस। ऐसा भी हो सकता है कि आप एप्लीकेशन पे इंस्टॉल होके आए, आपने एक भी ऑर्डर नहीं किया, आपने आए आप एप्लीकेशन पे, आपने देखा और फिर आप चले गए। या मान लो आपने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया 100 रुपए का, ठीक है, या 50, आपने से फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपए का ही ऑर्डर किया, मान लो, छोड़ो 100 का भी नहीं किया, आपने 50 रुपए का ही किया और फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी। तो अब एज जोमेटो मैं आपको इतने एड वैड दिखा के लाके मैंने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई, मैंने आपको 50 रुपए खर्चा किया आपको ऐप इंस्टॉल कराने में। उसके बाद आपने सिर्फ 50 रुपए का ऑर्डर किया, तो आपका जो कैक है और जो आपका लाइफ टाइम वैल्यू है वो बराबर हो गया, राइट? तो योर कैक बिकम्स इक्वल टू योर लाइफ टाइम वैल्यू। एज ए रिजल्ट आप मुझे कुछ दे के नहीं गए, आपको अक्वायर करने में मुझे कोई फायदा नहीं। इसलिए हम ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को भी देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम ये जो कस्टमर्स लेके आ रहे हैं इनसे नेट हमें कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप दैट मेक्स, कुछ समझ में आया, मतलब आई मीन आई एम हैप्पी टू काइंड ऑफ डिस्कस कि अगर कोई डाउट्स है उसमें अभी भी। बट दैट इज द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, होप इट हेल्प्स। Yeah, if you want to unmute yourself and have a discussion, you can go for it. I think Diksha, you also asked about churn rate. So, Gunjan, if you can give an example for churn rate as well. Got it. So Yeah. churn rate was here. Yeah. So churn rate का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 यूजर्स आए, राइट? मेरे पास एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन पे मेरे 100 यूजर्स आए। उन 100 यूजर्स में से आपको याद है मैंने बताया ना, 100 आए, 100 फर्स्ट मंथ पे 100 आए। फिर उसके बाद सेकंड मंथ पे मैंने देखा कि मेरे उसमें से सिर्फ 70 यूजर्स ही सेकंड मंथ पे रिटेन हुए। तो बाकी जो वो 30 यूजर्स थे उनको हम बोलेंगे कि वो चर्न हो गए। चर्न मतलब यूजर्स हु लेफ्ट योर एप्लीकेशन, who did not come back to your application। क्योंकि जो यूजर वापस आपके एप्लीकेशन में आ गया उसको तो आप बोलोगे कि वो तो रिटेन हो गया, राइट? और जो यूजर आपका चला गया वो बेसिकली आपका चर्न हो गया। तो चर्न इज बेसिकली इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट्स द ऑपोजिट ऑफ रिटेंशन। सो एनीवन हु डिड नॉट रिटेन बेसिकली चर्नड आउट।
Understood? So for example, again, if 100 users came, 70 retained to the application, returned to the app. So the 30 who left the application, they are basically your churned users. So that's your 30% is your churn rate. Let me know if there are more questions. Otherwise, I'll just proceed. Yeah, I think the last question that we have on chat at present is what exactly is PRD in product management and how important is it? Got it. So now what happens is, as I said in the beginning also, right? Like as a product manager, you are supposed to kind of not just develop a product, but at the same time, kind of work with a lot of stakeholders to to bring a final consensus as to what is it that is going to be built. आप designers के साथ काम करोगे, designs बनवाओगे, designs बनवाने के बाद आप उस सारी चीज को जो document करते हो, जिसमें आप लिखते हो कि यार what is the goal that we're trying to achieve, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट मेट्रिक्स लिखते हो, तो जिसमें आप लिखते हो कि आप क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो सॉल्व करना चाह रहे हो, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरीके से सॉल्व करोगे, व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू विल बी ब्रिंगिंग आउट, क्या डिजाइन्स बनेंगे, क्या पूरा फ्लो होगा, उस फ्लो के लिए क्या केसेस होंगे, राइट, व्हाट आर द मेट्रिक्स दैट यू आर गोइंग टू मेजर फॉर अचीविंग दैट फ्लो, ये सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, विच इज कॉल्ड एज अ पीआरडी। इस पीआरडी को इंजीनियरिंग टीम जो है आपकी वो कंज्यूम करती है, और उस कंज्यूम करने का मतलब है उसको रेफर करती है और उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बनाती है। तो आप सारे के सारे केसेस अपने पीआरडी में लिखते हो, विच इज देन यूज्ड बाय योर इंजीनियरिंग काउंटरपार्ट्स टू बेसिकली डेवलप अ प्रोडक्ट। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रनिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जिस भी इंसान को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना होता है, दे कैन रेफर टू योर पीआरडी। Yep. Yeah, I think that's it. Yeah, I think there's one last question, but we can take it up in the Q&A section as well. I think we are coming towards the end of the session, so we can keep this for the Q&A. Got it. So I Yeah. just have like one more slide to kind of share. So like for example, जो भी हमने ये प्रोडक्ट मेट्रिक्स अभी देखे, आप अभी तक आपको ये पता चल गया कि हमें मेजर क्या क्या करना है, हमें रिटेंशन मेजर करना है, हमें नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स मेजर करने हैं, पर ये सब चीजें आप देखोगे कहाँ, कैसे देखोगे, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टूल्स आते हैं जिनको हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स बोलते हैं। तो हर कंपनी में कोई ना कोई एक टूल होता है जो कि आप बाय कर सकते हो। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स आर लाइक फॉर एग्जांपल मिक्स पैनल, एम्पलीट्यूड, क्लेवर टैब, गूगल एनालिटिक्स, या फिर कुछ लोग इन हाउस उन टूल्स को बिल्ड कर लेते हैं कंपनीज में। तो ये टूल्स से आप जब अगर आप इन टूल्स को देखोगे, और आपको इन टूल्स को भी यूज करना सीखना चाहिए, क्योंकि इन टूल्स को जैसे ही आप यूज करना सीख जाते हो तो आपको डेटा देखना आ जाता है कि आपको किस तरीके से मेट्रिक्स को देखना है to actually derive good insights out of it. The entire purpose of seeing all these metrics is कि आप ये देख सको कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे कोई मेट्रिक आपकी गिर रही है, तो आप ये डायग्नोज कर सको कि कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है, और आप एक डेटा ड्रिवन इंसाइट निकाल सको। आप डेटा के बेसिस पे आगे डिसीजन ले सको कि हमें क्या चीज इंप्रूव करनी है और क्यों। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्रीनशॉट जो मैंने मिक्स पैनल का, अगर आपको थोड़ा सा टूल आप पढ़ोगे तो उसमें एक जैसे एक एनालिसिस है जिसको हम बोलते हैं फनल एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस सॉरी जोमेटो की ही बात करूं, तो आप इस तरीके का कुछ एक एक इस तरीके का फनल एनालिसिस का मतलब, पहले मैं फनल एनालिसिस का मतलब बता देती हूँ। फनल एनालिसिस का मतलब होता है कि एक पूरी जर्नी है यूजर की। उबर का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये उबर का स्क्रीनशॉट है। तो उबर के केस में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन खोल के आप लोकेशन एंटर करोगे, आप फिर कोई राइड को सेलेक्ट करोगे, राइड आपको मिल जाएगी, और फिर आप कंप्लीट राइड करोगे, आप बुक कर लोगे, फाइनली आप राइड कंप्लीट कर लोगे। तो इट्स अ जर्नी, राइट, कि कितने लोग, तो 100 हो सकता है, 100 लोग लोकेशन सर्च करें, उनमें से सिर्फ हो सकता है 30 लोग ही राइड को बुक करें, फिर हो सकता है उनमें से सिर्फ राइड बुक भी की, हो सकता है कुछ लोग कैंसिल कर दें, कुछ को मिले ना, किसी का ड्राइवर कैंसिल कर दे, कुछ कुछ होने के बाद हो सकता है फाइनली सिर्फ उन 100 लोगों में से जिन्होंने लोकेशन एंटर किया, हो सकता है 10 लोगों की ही राइड कंप्लीट हो, राइट। तो इस तरीके का आप एक ग्राफ देखोगे। ये एंड्रॉइड, ये उन पर्पल वाला उन लोगों के लिए जो एंड्रॉइड पे बुक कर रहे थे, और ऑरेंज वाला वो जो आईओएस पे उबर को यूज कर रहे थे।
तो इसमें आप ये देखोगे कि 52% कन्वर्जन है। इसका मतलब कि अगर 100 लोग अगर एंटर कर रहे हैं लोकेशन, तो उसमें से सिर्फ 50% ही लोग ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा राइड कंप्लीट कर पा रहे हैं। बाकी 50% जनता को मैं बीच में ही खो दे रही हूँ। राइट, ओनली आउट ऑफ 100 people only 52 people could complete the ride. Rest of the 48 people I lost in between the steps itself. So as a product manager now I have to think कि अब इस ग्राफ को मैं देख के ये सोचूंगी कि क्यों मेरे यूजर्स यहाँ पे जो 48 भी नहीं बुक कर पाए, वो क्यों नहीं बुक कर पाए, उन्हें क्या समझ नहीं आया, वो कहाँ पे ड्रॉप हो गए। यहाँ पर भी कुछ यूजर्स मेरे ड्रॉप हुए, 10-15 यूजर्स यहाँ ड्रॉप हुए, बाकी के यहाँ ड्रॉप हुए। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हुए वो किस कारण से ड्रॉप हुए, वो उनको क्या प्रॉब्लम आई एप्लीकेशन में, उन्हें क्या समझ नहीं आया एप्लीकेशन में। फिर आप उन यूजर्स से बात करोगे, उनकी प्रॉब्लम समझोगे कि आपको इस स्टेप पे क्या समझ नहीं आया, और फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट में वो चीज इंप्रूव करोगे। फिर आप जैसे यहाँ पे देखोगे एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस, यहाँ पे दिख रहा है आईओएस में तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि आईओएस वाले एप्लीकेशन में कुछ बग चल रहा हो, आईओएस वाली एप्लीकेशन सही से काम ना कर रही हो, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स इस स्टेप पे ड्रॉप कर जाते हैं। तो जब आप इस तरीके के ग्राफ्स देखते हो और इस तरीके से अपनी मेट्रिक्स को देखते हो, तो ही आपको समझ में आता है कि आपके नंबर 1 प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, नंबर 2 कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के साथ साथ जो हमारे ड्रॉप आ रहे हैं एट डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोडक्ट जर्नी, वो क्यों आ रहे हैं, एंड हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व देम, हाउ कैन यू सॉल्व फॉर दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जिससे कि आपका प्रोडक्ट बेटर हो जाए। तो दिस इज लाइक अ एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ डिफरेंट व्यूज, ये जितने मैंने जो ये बताए प्रोडक्ट के ये टूल्स होते हैं, इन सारे टूल्स में ये सब तरीके के ग्राफ्स बनाने का, अलग अलग मेट्रिक्स को मेजर करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप ये टूल इनकॉर्पोरेट करोगे और यूज करना सीखोगे तो आपको ये आ जाएगा। And I think that was the last slide. So now I'm open to any questions if anyone has any questions. Yeah, I think the first question is from Swapnil. He wanted to ask, is it important to be from top B schools or like tier one colleges to get into product domain? No, yeah, it's not necessary. I mean, product management as a domain, it's a very generalist sort of a domain, at least in the beginning of your career. So even if you do not, like for example, I do not have an MBA. You don't have to have an MBA. You can learn a lot of things by the courses. You can get onto the role, whichever company you get into, and after that, वहाँ पर आप बहुत चीजें सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, मतलब आज के टाइम में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ MBA करना ही बहुत जरूरी है, and then you can get the product role. Yeah. Then the next question is like, what are the different types of PM roles that we can opt for? This is from Nida. Yeah. Different types of PM roles. Is that the question? Yeah, different types of PM roles. So Nida, if you're on the call, you can like clarify. You can unmute yourself and clarify what you mean by this. Okay. While we wait, there's another question. Aniket says I'm a government servant, but wanted to learn PM course for that. I want to quit my job, or I can learn while doing our job also. Uh, Correct. Yeah. So you wanted to understand if he can do this course while on the job, or does he need to quit the job to carry this forward? Right. So, I mean, of course, you don't need to quit the job. And product management, I mean, most of the courses, and I think Apna also offers, but most of the courses that are sort of there, it helps you to sort of upskill while you're on the job itself, right? So just kind of go through the courses, upskill yourself. Meanwhile, keep applying. आपको जब job मिल जाए तब आप छोड़ो, उससे पहले just keep kind of, I mean, I wouldn't advise to leave the job. Yeah. Okay. I think we've covered the questions that were there on the chat. Anything else? Okay. We can probably take one last question. I think we are already at time. Yeah, let's answer this question from Anil. I have a gap and had a workshop. Now I'm having product management course. So what's the best way to, best way to skills that I have to learn more? Anil, are you asking about which skills you should focus on? A bit unclear about the question. If you can unmute yourself, that also works. Hello, can you hear me? Yeah, yeah. Actually, previously I had a business. Now I quit the business in last year. But in the meanwhile time, I'm having the product management course. But I want to know how to skill up in the. I mean, I want to get skill up in more. I like to get into the product management
So what are the skills? Like you said, we have to use the tools like this now. So like that, what are the other things like design, UI UX design, or any other things I have to learn? So what are the things? Can you guide me, mentor me like that? Sure, sure. So, right. I mean, from the point of view of product management, right? Like there are some of the most important basic skills. So one is, of course, design. I wouldn't advise you to become like a expert in design because that is not the expectation. You will have dedicated UI, UX designers who are expert in their field, who are expert in design. You will be sort of expected to at least understand what UI, what UX is so that you can work in collaboration with designers to, critique and help them build better designs. So you have to upskill yourself with UI, UX design, number one. Number two, with respect to technology, because you will be working very closely with engineers also to develop products, right? So uske liye aapko, you need to understand basic technology, basic tech jargons, and there are good books out of it. Like, for example, one of the books that I can suggest for, upskilling yourself in technology is Tech for PMs. I'll put it in the chat also. This is a book which you can refer, and just this is for beginners itself, by Deepak Singh. So this book will basically help you to kind of, understand technological jargons that are used by engineers. So this will help you upskill on tech. Then the third is basically data. And today, if you attended today's session, so like, for example, product metrics and all of these things. So this is around data only. कि आपको क्या data देखना चाहिए? How should you analyze that data? ये जो डेटा का एनालिटिक्स है पूरा का पूरा, ये प्रोडक्ट एनालिटिक्स के टूल्स जैसे आप थोड़ा और सीखोगे तो आपको डेटा भी देखना आ जाएगा. After that, it's basic business sense, right? And you were already a founder, so I mean, I believe that your business sense would anyways be much better. तो अगर आपको ये basic skills भी आ जाती हैं, then I think you're good to go with respect to have at least the technical skills that are required to be a product manager. इसके बाद, of course, you should have good writing skills because you have to write a lot of documents. You should have good communication skills because you will be interacting with a lot of different stakeholders and explain them the requirements, work with designers, engineers. So I think these are some of the other important skills, soft skills. Yeah, I think we've covered the questions that were already there. Yeah. So we'll quickly come towards the conclusion of the session, starting with a huge thank you, Gunjan, for giving your valuable time and sharing your expert advice and all these the knowledge that you shared on the session. I hope people found it useful and were able to get their doubts clarified. If you still have any other questions, any other doubts, do reach out to us. You can mention these things in the feedback form. We'll try to cover them in the next session that we do. And if you want to connect, Gunjan, if you're fine, you can maybe attach your LinkedIn profile if people want to connect with you. So if you do want to connect with Gunjan for any other doubt clarification or mentorship, you can definitely do so. Wrapping off by saying very quick reminders. I've shared the feedback form on the chat here. So do let us know how you found today's session. If you think we should cover any other topics, if you think we should do anything better, do let us know and we can work accordingly. And filling out the form will also allow us to invite you for future sessions so that you don't miss out. I've also linked the website of exclusives. Here you will be able to find the recording of this session and also the sessions that we have done in the past. You can also register for any upcoming events that you will have that will be happening over the course of this week and also next week. So yeah, huge thank you for everyone joining in, and I hope this session was useful to you, and we hope to see you all in the next session as well. Yeah, thank you everyone. Have a nice evening. Thanks.